we are starting our lecture, which is our lecture number 1 of chapter Discovering Plants. In this lecture, we will study what is plant, why they are called living organism, the structure of a flower and reproduction in plant, and we will discuss the first step of reproduction, which is pollination in this lecture. What is plant? Plants are living thing, but why they are called living thing? Why they are called living organism? Because of the two important characteristics, growth and reproduction. Because living organisms are those organisms who can grow and reproduce. But how can we say that all plants show growth? When we sow the seeds in the ground or in a soil, after a few days we observe that seed change into a baby plant and the baby plant change into an adult plant. So the process in which the mass and the size of a body increases is called growth. Because of these developmental changes, we can say that all plants show growth. So here one character of living organism is clear, or we can say that one character is proof. Starting the second most important character of living organism, which is reproduction. Now what is reproduction? Reproduction is a process in which an organism produces their offspring, young ones or a baby. वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बेबी, अपना ऑफस्प्रिंग, अपना यंग वन प्रोड्यूस करे, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. प्लांट एंड एनिमल्स ये दोनों ही अपना बेबी, अपना यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इन दोनों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. Here are the 4 steps of reproduction: pollination, fertilization, seed dispersal and germination. But today I will just explain you pollination. लेकिन पॉलिनेशन का टॉपिक समझने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल और जर्मिनेशन आगे के न्यू लेक्चर्स में और इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जाए. आप इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में एक चाइना रोज शो किया गया है, जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. दिस कलर्ड पार्ट आर कॉल्ड पेटल्स, which attract the insect for pollination, and the green leafy structure is called sepals. But the two important parts of any flower is male and female. In this picture you can see the male part of this flower and the female part of this flower. The male part of this flower consists of anther and filament, and the female part of this flower consists of stigma, style, ovary. Ovary contain ovules, and anther, which is the male part of the flower, contain pollen. Pollens are dust-like in nature, which contain male reproductive cells. And the ovary, which is the female part, which contain the ovules, contain the female reproductive cells. Why they contain the reproductive cells? ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे अपने न्यू लेक्चर में, या इनका क्या फंक्शन है, इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स रखने से आगे प्लांट को क्या फ़ायदा होता है रिप्रोडक्शन में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. In this slide you can see the male and female reproductive part of a flower. The male reproductive part of a flower consists of a stamen and an anther. A filament is a stalk-like structure, and above the filament there is an oval-shaped structure which is called anther, and anther contain pollen grains which are dust-like in nature. And the female reproductive part of a flower consists of stigma, style, ovary, and ovary contain ovules. We are starting our next topic, what is pollination. As I told you, pollination is the first step of reproduction. But what is pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. pollen grain जब anther से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा के पास चले जाएं, इस प्रोसेस को हम pollination कहते हैं. pollen grain मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन करते हैं, और ये किसके अंदर इंक्लोज होते हैं? एंथर के अंदर. जब ये pollen grain एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर
जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर स्टिक हो जाएं, इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हिबिस्कस फ्लावर यानी कि चाइना रोज शो किया गया है, जिसके अंदर इसके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुए हैं एंथर से स्टिग्मा के पास। तो ये कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है? पॉलिनेशन, जो कि रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? In self-pollination, pollen grain transfer from anther to stigma, but this whole process occurs in the same flower. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में। लेकिन अगर ये प्रोसेस सेम फ्लावर में हो रहा हो, मतलब जिस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं, जिस फ्लावर का एंथर है, इसी से पॉलन ग्रेन्स निकलें, इसी से बाहर आएं और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर स्टिक हो जाएं। अगर ये पूरा प्रोसेस सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन विच अ सिंगल फ्लावर इज शोन, इट्स पॉलन ट्रांसफर टू इट्स ओन स्टिग्मा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, वी नीड 2 फ्लावर्स। मैंने ये क्यों कहा कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स की नीड है? हम तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये बात अच्छे तरीके से इस पिक्चर में समझ सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें जिसके अंदर आपको 2 चाइना रोज यानी कि 2 हिबिस्कस शो किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें 2 फ्लावर्स की नीड क्यों है। क्रॉस पॉलिनेशन में भी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन ही होता है और पॉलन ग्रेन कहाँ जाके स्टिक होंगे? स्टिग्मा पर। लेकिन ये प्रोसेस 2 अलग अलग फ्लावर्स में होता है। अगर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल रहे हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होंगे, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक नहीं होंगे। मतलब अगर कोई एक फ्लावर अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ कर रहा है तो कोई दूसरा फ्लावर अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ करेगा, जैसे कि इस पिक्चर में किया गया है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं एजेंट। वो कौन कौन से एजेंट हैं जो फ्लावर को पॉलिनेट होने में हेल्प करते हैं? फ्लावर्स may be pollinated by wind and by animals. By wind. फ्लावर पॉलिनेशन बाय विंड कब करता है? आपको ये बात मालूम है कि कुछ फ्लावर्स बहुत सेंटेड होते हैं और कुछ फ्लावर्स अनसेंटेड होते हैं। कुछ फ्लावर्स बहुत कलर्ड होते हैं और कुछ फ्लावर्स बहुत डल कलर्ड होते हैं या वाइट होते हैं। तो इससे क्या होता है या इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होगी? अगर आपने वो फ्लावर्स देखे हों जिनके पेटल्स, आपको पता है ना कि जिस कलर के पेटल्स होंगे उसी कलर का फ्लावर होगा, क्योंकि फ्लावर का कलर्ड पार्ट कौन सा है? पेटल्स हैं। अगर कुछ फ्लावर के पेटल्स कलर्ड नहीं हैं, डल कलर्ड के हैं, वाइट हैं, जिससे आपको लगता है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो या जिनके अंदर इतनी गुड स्मेल नहीं है, जो अनसेंटेड नहीं है, तो ये विंड के ज़रिए से पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि इनके पास इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते। जब इनसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते तो ये टाइनी लिटिल पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा पर? कैसे पॉलिनेशन होगी? तो बाय विंड होगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि डस्ट लाइक इन नेचर होते हैं, टाइनी होते हैं, तो ये हवा के ज़रिए, विंड के ज़रिए आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा के पास। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के भी ज़रिए पॉलिनेट होते हैं, जिनके पेटल्स बहुत कलरफुल हों या वो गुड इन स्मेल हों। लेकिन जब एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या सिर्फ देखने के लिए अट्रैक्ट होते होंगे? नो, ये फ्लावर के अंदर से नेक्टर को सक करने के लिए जाते हैं। ना, व्हाट इज़ नेक्टर? नेक्टर क्या है? नेक्टर एक शुगरी फ्लूइड है जो फ्लावर के अंदर मौजूद होता है। जब इंसेक्ट्स और बर्ड्स फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो बेसिकली ये इस नेक्टर को सक करने के लिए जा रहे हैं।
फिर जब ये नेक्टर को सक कर रहे होते हैं तो पॉलन ग्रेन जो कि एंथर में मौजूद हैं ये इनकी बॉडीज़ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से इनकी बॉडी से वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गई, यानी कि एनिमल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, फ्लावर्स को पॉलिनेट होने में हेल्प कर रहे हैं। Let's start the homework. Do question number 9 on page number 51 in your science workbook. As we had previously discussed that flowers can be pollinated by wind and by animals. But those flowers which can be pollinated by wind are different to those which can be pollinated by animals. First, I will explain you the parts of those flowers which can be pollinated by wind. The petals of these flowers are white and dull in color. उन फ्लावर्स के पेटल वाइट होते हैं और डल कलर के होते हैं। उनके अंदर नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से इनके पास एनिमल्स या इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते और वो अनसेंटेड होते हैं, उनके अंदर से स्मेल भी प्रोड्यूस नहीं होती। उनके पॉलेंस टाइनी और लाइट होते हैं, वज़न में हल्के और बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो विंड के ज़रिए से ईजिली कैरी किए जा सकते हैं। उनके एंथर हैंग आउट हुए होते हैं फ्लावर से, मतलब बाहर की तरफ फ्लावर के लटके हुए होते हैं। उनके स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है। लेकिन वो फ्लावर जो पॉलिनेट होते हैं एनिमल से, उनके पेटल्स कलरफुल होते हैं और लार्ज होते हैं। उनके अंदर नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है और वो गुड इन स्मेल भी होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनके पॉलन स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉलन उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। मतलब जब कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड नेक्टर को सक करने आता है फ्लावर के पास, तो वो पॉलन जो स्टिकी हैं वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन उनके एंथर्स उनके फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, वो बाहर की तरफ हैंग आउट नहीं हुए हुए होते। देन उनके स्टिग्मा नॉर्मल इन साइज होते हैं और स्टिकी होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।